Welcome everyone. Welcome to Physics by Aryan. I am Aryan Mehra and I have decided to cover 1 month detailed CUET lecture series. Now CUET exam may have the same syllabus as IIT JAM. Like CUET and IIT JAM has the same syllabus. But the way to study both the exams is completely different. We need a different set of requirements for IIT JAM and we have a completely different set of requirements for CUET exam. And if you do not understand the requirements of CUET exam, you will again fail in CUET exam if you have not done very good in IIT JAM. And what are those very four more requirements for CUET? Today, first we will begin by introducing CUET exam little bit, and then I will have 1 month of free classes for CUET. The classes has started from today, which is 16th April, and it will go on till at least 6th June. At least 6th June. So more than 1 month. 1 month, 20 days. The classes will begin, remain there. How the classes will be? The classes will be at 8:15 p.m. for CUET. Okay. And there will be classes on 2 days. For example, there will be a class on 16th April and 17th April. And then there will be 1 day break in between. Then again, the class will be on 19th and 20, and then again, there will be 1 day break. I have given the detailed schedule of the classes that on which day we will cover which topic in the Telegram channel. So if you are not in a Telegram channel, join the Telegram channel, see the schedule on which days we will cover which topic. In case you miss the class due to any reason, the classes will be there available on the YouTube channel within next 24 hours. But I will suggest you to watch the live classes. The reason because you will remain consistent. Your classes will be done and you will not have any pending work. Along with this, I am reducing the price of CUET course as well so that students can get benefit. Currently, the CUET course price is 199. I am reducing it to 1499 now. And why you should join this course? The reason being, number one, all the notes, whatever the classes will be taught, all the notes will be available in the course. Assignments. Now, this is the best feature. CUET needs a specific type of questions. CUET, you should be able to practice and solve a specific kind of questions for CUET exam. For example, there are very one line questions because the number of questions in an exam are quite high and you cannot solve any assignment for CUET. You need a particular type of assignments. I have made an assignment topic wise. So each subject has been divided topic wise. For each topic, there are notes available. There is a book recommendation available. For each topic, I have mentioned specifically which book chapter you should read. Only that chapter you have to cover for one topic. That's it, nothing more. Then my notes. If you will see that, okay, these are the formulas that I should note down while studying the book. So you should see my notes, then assignment, and then previous year solutions of all the CUET exams. So remember, these assignments will also have answer key and many assignments also have solutions as well. Okay. Most of the assignments have answer key and many assignments, almost more than 60% assignments also have solutions available as well. And these all assignments are made by me. Okay. Not any copied assignments. All the assignments are new and relevant questions are there. Then full length test series. Full length test series. This test series has same pattern as CUET exam and there are subject tests also. There are full length tests also. Last year, this test series was given by more than 100 students. And many of them, most of them got admission into good BHU, DU and HCU, Punjab Central University, many good central universities. Okay, so as the test series has been revised and it is a full length test series with the detailed solution. Okay, detailed solution. And also the best benefit of the course is after CUET exam, once your CUET exam is done, you can either join GATE 2024 batch or IIT JAM 2024 batch.
without any extra fees, no extra fees. Last year also this happened, and students got promoted to either gate batch. If your CUET exam is good and you want to give a gate now, you can join gate. If you want to repeat IIT jam, you can do that as well. There will be no extra fees, you will be just promoted there, no questions asked. Okay, so along with this lecture series, if you really want to take up full benefit of the lecture series, really want daily assignment where you actually keep on studying, then you should also join the course. Now it is very affordable, only 1500. Okay, now what I want to cover is number first topic which I want to cover. Any questions still here first of all, then I will move forward. Any questions still here about CUET exam or anything? If you are feeling any pressure for CUET exam or any questions regarding CUET exam. Okay, all fine. Should I move? आगे बढ़ूं? लेक्चर सीरीज में क्या कवर करेंगे वो करूं बात? हाँ ना बोलो भाई, आगे करें? Yes, sir. ओके, तो लेक्चर्स में क्या करेंगे? सबसे पहले टॉपिक विच आई वांट टू कवर इज मॉडर्न फिजिक्स. Now, modern के अंदर I will not cover each and everything in the beginning. I will start with the nuclear physics. I will start with nuclear physics. The reason being, some people think that this is a little tricky topic. कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड डिफाइंड सिलेबस जहां से CUET में क्वेश्चन डेफिनेटली वहीं से आ रहा हो. इन IIT जैम यू कैन प्रेडिक्ट दैट न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन कहां से आएगा, बट फॉर CUET द क्वेश्चन इज वेरी मच फैक्ट बेस, बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. और न्यूक्लियर फिजिक्स यूजुअली वीक रह जाता है, तो उससे गेट और नेट में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा इन द फ्यूचर. सो वी विल बिगिन विद द न्यूक्लियर फिजिक्स. कुछ 4 से 5 क्लासेस हम न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर करेंगे. टुडे आई विल बिगिन विद द न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स CUET के लिए किन किन चीजों में डिवाइडेड है? एक तो है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज. न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो कि आज हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कौन कौन सी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं. हम हर एक प्रॉपर्टी को एक ब्रीफली पढ़ेंगे, उसका क्या फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या उसमें है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. देन देयर इज अनदर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस का लेक्चर मैं CSR नेट बैच के साथ साथ में ले रहा हूं. तुम लोगों को दोनों क्लासेस अटेंड करने चाहिए, CSR नेट वाला भी और ये भी. अगर तुम न्यूक्लियर फोर्सेस का लेक्चर देखना चाहते हो तो YouTube पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का लेक्चर देखने के बाद तुम YouTube पे न्यूक्लियर फोर्सेस का लेक्चर भी देख सकते हो. थर्ड टॉपिक जो आता है वो है रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है और हर साल बहुत से क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी में देखने के लिए आते हैं. देन द वन मोर टॉपिक विच इज न्यूक्लियर मॉडल. न्यूक्लियर मॉडल आपके सिलेबस में लिक्विड ड्रॉप मॉडल ही सिर्फ एक मॉडल है जो तुम्हें पता होना चाहिए. तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है जो कि न्यूक्लियस के मॉडल है, जो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करता है. तो ये 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली जो कि आते हैं CUET के सिलेबस में. ठीक है, आज हम शुरू करेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. अब न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज से आने से पहले पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस होता ही क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज न्यूक्लियस? वेरी सिंपल क्वेश्चन टू BSc स्टूडेंट्स. न्यूक्लियस क्या है? कोई भी बता सकता है? कोई नहीं बता सकता व्हाट इज न्यूक्लियस? बताओ. Proton. Okay, so nucleus is a confined space which contains neutrons and protons. Okay, confined space containing neutrons and protons. It's an inner core. It is a part of an atom which is a positive. Okay, which has a positive charge. तो न्यूक्लियस क्या होता है? हमारे एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. दिस इज अ वेरी सिंपल पिक्चर. ये पिक्चर गलत है एटम की, बट ये बहुत ही सिंपल पिक्चर है जिससे हम समझ सकते हैं चीजों को. अब न्यूक्लियस के अंदर एक तो होते हैं न्यूट्रॉन्स और एक होते हैं प्रोटॉन्स. प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर होता है नो चार्ज. तो सबसे पहला टेबल जो तुम्हें पता होना चाहिए वो है पार्टिकल
उसके बाद उसका मास क्या है और उसका चार्ज क्या है। तुम्हें ये न्यूट्रॉन के लिए पता होना चाहिए, प्रोटॉन के लिए पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन के लिए पता होना चाहिए। नहीं पता तो गूगल पे करके तुम्हें ये टेबल को फिल करना चाहिए कि मास क्या है और उसका चार्ज क्या है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है। अब जब भी हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो कुछ कुछ चीजें आएंगी जो कि हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि इस न्यूक्लियस का साइज क्या है, क्या साइज है इस न्यूक्लियस का। नंबर वन क्वेश्चन, रेडियस क्या है, क्या ये स्फेरिकल है, इसकी शेप क्या है, इसके अंदर जो चार्जेस हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, क्या वो सिमेट्रिकल है, क्या वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर सेंटर में न्यूक्लियस हाईली डेंस्ड है और बाउंड्रीज पे कम डेंस्ड है। समझ रहे हो कि सेंटर पे तो ज्यादा चार्जेस हैं और जैसे जैसे न्यूक्लियस खत्म होता है वैसे वैसे उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। किस तरह का है न्यूक्लियस, क्या वो उसकी डिस्क्रीट बाउंड्रीज है, क्या न्यूक्लियस मान लो कि मैं बोलूं 2 फर्मी मीटर, तो क्या 2 फर्मी मीटर का ही है या धीरे धीरे से खत्म होता है न्यूक्लियस, क्या उसकी बाउंड्रीज धीरे धीरे से खत्म होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर। उसकी स्पिन क्या है, न्यूक्लियस की एज सच खुद में स्पिन क्या है, और न्यूक्लियर के अंदर जो पार्टिकल है उसकी क्या स्पिन है, न्यूट्रॉन की क्या स्पिन है, प्रोटॉन की क्या स्पिन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस को हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस के साइज को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि हमने बात की। इन दोनों को अलग अलग नाम लेने से अच्छा हम एक नाम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। सो न्यूक्लियॉन इज अ कॉमन नेम विच इज यूज्ड फॉर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर तुम्हें प्रोटॉन को प्रोटॉन नहीं बोलना या न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन नहीं बोलना, तुम दोनों को ही न्यूक्लियॉन बोल सकते हो। दोनों का एक और नाम होता है जो है न्यूक्लियॉन। तो दोनों को न्यूक्लियॉन बोला जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें साइज पता करना है तो साइज पता करने का तरीका क्या होता है। अगर तुम्हें न्यूक्लियस का साइज पता करना है, सोच कर देखो कि अगर तुम्हें मैं बोलूं कि न्यूक्लियस का साइज मेजर करो न्यूक्लियस का साइज, तो कैसे मेजर करोगे। उसको मेजर करने का एक तरीका है कि हम उसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ चार्ज पार्टिकल्स को हिट करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने एक चीज पढ़ी थी क्वांटम मैकेनिक्स में कि हर पार्टिकल की एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, एक वेव एसोसिएट होती है हर पार्टिकल के साथ। अगर ये वेव जिस चीज पे हिट कर रही है उसका साइज, मान लो कि न्यूक्लियस का साइज है ए, अगर ये ए और लैम्डा कंपेरेबल है तो ये लैम्डा यूज किया जा सकता है ए को मेजर करने के लिए, ए को मेजर करने के लिए। जैसे कि क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन की जाती है, उससे हमें क्या पता चलता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें पता चलता है कि एटम्स के प्लेन्स के बीच में क्या डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ और एटम्स के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कंपेरेबल है, वो दोनों लगभग लगभग एक जैसे हैं। अब अगर हम एटम्स की एनर्जी लेवल्स के बारे में पता करना चाहते हैं, जैसे कि बोहर एटम, जैसे कि हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स कितनी कितनी दूर हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइट। लाइट को शाइन करते हैं क्योंकि लाइट की वेवलेंथ और एनर्जी एटम्स के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनका साइज वो लगभग लगभग सेम है, इसलिए वहां वो यूज करते हैं। तो अगर न्यूक्लियस का साइज पता करना है तो हमें एक ऐसी वेवलेंथ सेंड करनी पड़ेगी जो वेवलेंथ लगभग लगभग न्यूक्लियस के साइज के जितनी हो। तो हमें जब कैलकुलेशंस करके पता चलता है कि ये वेवलेंथ कम से कम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में होनी चाहिए। कितनी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमें ऐसे पार्टिकल्स भेजने हैं जिनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। तो अगर हम ऐसे पार्टिकल्स को हिट करते हैं न्यूक्लियस के ऊपर और हम ये देखते हैं कि वो पार्टिकल्स कैसे स्कैटर हुए, उस इंफॉर्मेशन से हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ कंसेप्ट कि हम साइज को पता कैसे करते हैं। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, वी थ्रो द पार्टिकल्स और रेडिएशंस having the wavelength of size comparable to the size of the nucleus। तो अगर उसका साइज और जो पार्टिकल की रेडिएशंस तुमने भेजी है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों कंपेरेबल हैं तो तुम्हें साइज पता चल जाएगा।
पार्टिकल्स की कितनी एनर्जी होनी चाहिए, लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में। ठीक है, अब जब वो पार्टिकल्स या रेडिएशंस स्कैटर होंगे उसको तुम स्टडी करोगे। अब तुम्हें दो तरह की चीजें पता चल सकती है। पहली चीज है कि उस न्यूक्लियस के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि मतलब कि चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्जेस का एक ही रीजन है, प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो चार्ज है नहीं। तो एक तरह से तुम ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगी। अब तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझनी है तो तुम्हें कौन से तरह के पार्टिकल्स भेजने पड़ेंगे, चार्ज्ड पार्टिकल्स भेजने पड़ेंगे। अगर तुम चार्ज पार्टिकल भेजोगे, फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, या फिर एक्सरेज, म्यूनिक एक्सरेज हो गई, ऑप्टिकल एक्सरेज हो गई, ये सब चीजों को अगर थ्रो करोगे तुम, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है न्यूक्लियस का। दूसरी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम्हें पता चल सकती है वो है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मास कैसा है, मतलब कहां कहां पर कैसा मास पड़ा हुआ है, मतलब क्या उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या किस तरह से मास रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। ये दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस हमें पता चलती हैं स्कैटरिंग से। किसकी स्कैटरिंग से, इंसिडेंट पार्टिकल्स की स्कैटरिंग से या इंसिडेंट रेडिएशंस की स्कैटरिंग से। अगर तुम्हें मास डिस्ट्रीब्यूशन पता करनी है तो तुम या तो अल्फा डीके देखो या पियोनिक एक्सरेज करो, ये सब नाम जरूरी नहीं है। बस एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो चार्ज पार्टिकल्स भेजने पड़ेंगे, अगर तुम्हें मास चाहिए तो तुम कोई भी तरह का पार्टिकल भेज सकते हो। ठीक है, तो ये सारी स्टडीज की गई और स्टडीज के बाद पता चला कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अंदर, वो एक फॉर्मूला से डिफाइन होता है। और वो फॉर्मूला कौन सा है, रो इक्वल्स टू रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू पावर आर माइनस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहां पर रो क्या है, रो है चार्ज डेंसिटी। रो क्या है, चार्ज डेंसिटी, कि यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये सेंटर है, और ये डिस्टेंस है यहां तक लेकर डिस्टेंस है आर। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, सॉरी चार्ज डेंसिटी क्या है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। अलग अलग आर डिस्टेंसेस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला होता है ये हमने काहे से पता किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता किया। अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो तुम्हें पता चलेगा कि देखो सेंटर पे, एकदम सेंटर पे, न्यूक्लियस के एकदम सेंटर पे जो डेंसिटी है वो है रो नॉट। रो नॉट डेंसिटी है, कुछ टाइम तक वो डेंसिटी रहती है कांस्टेंट, मतलब कि सेंटर से लेकर कुछ डिस्टेंस तक, मान लो इतने डिस्टेंस तक वो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, और डेंसिटी बहुत हाई है। रो नॉट सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इस पूरे ग्राफ की। तो सेंटर में डेंसिटी है हाईएस्ट और कुछ डिस्टेंस तक वो डेंसिटी कांस्टेंट, फिर वो डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियस की जो है वो एकदम फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है, या न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। न्यूक्लियस सबसे ज्यादा डेंस है सेंटर में, और सेंटर में लगभग लगभग वो कुछ डिस्टेंस तक उतना ही डेंस रहता है, और फिर धीरे धीरे उसकी बाउंड्रीज जो है खत्म होते 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 जीरो हो जाती है। तो ये मीनिंग है इस फॉर्मूला का। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा दिखता है और इस ग्राफ के फीचर क्या है। इस ग्राफ का नंबर वन फीचर, जैसे मैंने बोला कि सारे न्यूक्लियस की, जैसे यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं, एक एक न्यूक्लियस के लिए है, दूसरा दूसरे न्यूक्लियस के लिए। अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो दोनों ग्राफ्स का रो नोट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। इसका क्या मतलब है कि सारे न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट सेम ही सेंट्रल डेंसिटी है, जो बीच में जो डेंसिटी है वो सारे न्यूक्लियस की सेम ही है लगभग। तो ये क्या है, पहला फीचर। तो चाहे मैं तुम्हें एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस दे दूं या फिर हाइड्रोजन का, या फिर तुम कोई और ले लो नियोन का, तो इन दोनों का जो सेंट्रल डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी, प्रोटॉन्स की डेंसिटी, वो लगभग सेम होगी। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है कि डेंसिटी कुछ डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहती है और फिर काफी रैपिडली फॉल करती है।
ये दूसरा फीचर है, हम इस ग्राफ में देख सकते हैं। थर्ड फीचर क्या है, यहां पर एक पैरामीटर है कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये वो डिस्टेंस है जहां पर डेंसिटी रो नॉट बाय 2 हो जाती है, यानी कि हाफ हो जाती है। सो द डिस्टेंस एट विच द डेंसिटी बिकम्स हाफ इज कॉल्ड आर, कैपिटल आर। ठीक है जी, तो ये आर है। अब इस आर का फॉर्मूला क्या है, ये आर से ही हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन करते हैं। जो हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन करते हैं ना, वो कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की शार्प बाउंड्रीज तो है नहीं। न्यूक्लियस तो एक डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहता है और फिर जीरो होता 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 जीरो हो जाता है, स्लोली गिरते गिरते जीरो हो जाता है। तो फिर शार्प बाउंड्री तो है नहीं, तो फिर तुम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन कैसे करोगे, कैसे बोलोगे कि ये रेडियस है न्यूक्लियस का। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो डिफाइन किया जाता है वो ऐसे किया जाता है कि जिस पॉइंट पे डेंसिटी हाफ हो जाए उस पॉइंट को रेडियस बोल दिया जाएगा। ठीक है, और इस रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/√3 फर्मी मीटर। तो यहां से क्या पता चला कि रेडियस डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। ए क्या होता है भाई, मास नंबर होता है। हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1, हीलियम के लिए 4। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो जितना बड़ा न्यूक्लियस यानी उतना बड़ा मास नंबर, यानी उतना ही बड़ा रेडियस। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो रेडियस ज्यादा होगा। वेरी सिंपल। तो इसका फॉर्मूला है r इक्वल टू आर नॉट ए 1/√1/3 फर्मी मीटर्स। तो फर्मी मीटर क्या होता है, 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। ये बात को याद रखना, -15 मीटर्स। ओके। अब ये आर नॉट क्या है, आर नॉट एक कांस्टेंट है। आर नॉट की वैल्यू 1.1 से लेकर 1.5 होती है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल दिया जाए तो तुम हमेशा 1.2 मान के चलना। अगर मान लो तो तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस फॉर्मूला के बेस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तुमसे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाता है। यूजुअली वो कंपैरिजन में पूछते हैं कि दो न्यूक्लियस की रेडियस का रेशो क्या होगा, तो उसमें तो आर नॉट कैंसिल हो जाता है। लेकिन एज सच अगर तुम्हें कभी पूछ ले तो आर नॉट की वैल्यू हमेशा 1.2 लेना, या फिर वो वैल्यू लेना जो क्वेश्चन में अगर दी हुई है। तो कभी कभी तो क्वेश्चंस में भी दे देते हैं। अगर नहीं दिया है और तुम्हें एग्जैक्टली आर नॉट की वैल्यू चाहिए ही तो 1.2 फर्मी मीटर ले लो। वैसे ये आर नॉट की वैल्यू 1.1 से 1.5 के बीच में वेरी करती है। और ये किस चीज पे मैटर करता है, कि तुमने कौन सी टेक्निक यूज किया है रेडियस को मेजर करने के लिए। मेजर करने के लिए जो भी टेक्निक यूज किया है उसके ऊपर ये आर नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है तो बताओ। अब इसके अंदर एक और पैरामीटर है इस फॉर्मूला के अंदर, वो है ए, स्मॉल ए। तो कैपिटल आर तो हमें पता चल गया जहां पर डेंसिटी आधी हो जाती है। अब स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए ये बताता है कि तुम्हारा ग्राफ कितनी शार्पली रिड्यूस होगा। क्या ये बहुत जल्दी जीरो पे जाएगा या धीरे धीरे जीरो पे जाएगा। तो ए क्या बताता है कि न्यूक्लियस की कितनी शार्प बाउंड्रीज है। ए क्या बताएगा कि न्यूक्लियस की कितनी शार्प बाउंड्रीज है। ठीक है, ये बताता है तुम्हारा ए। ठीक है, न्यूक्लियस की एज सच शार्प बाउंड्री नहीं होती। अब अगर तुम कैलकुलेशंस करो, अब तुम अगर कैलकुलेशन करो, मान लो कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सेंट्रल डेंसिटी जो है रो नॉट, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है सारे न्यूक्लियस की वजह से, वो होती कितनी है। अगर हम उसकी कैलकुलेशंस करें तो वो आएगा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या है, मास होता है मास ऑफ वन प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मास क्या होगा। सारा जो मास आ रहा है वो तो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है ना, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, या नंबर ऑफ टोटल मास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, ए। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल मास, ये है तुम्हारा टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। आर हमने अभी पढ़ा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3। तो इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। समझे। अगर तुम अब इसकी वैल्यूज डालोगे सिंपल, क्योंकि एम पी तुम्हें पता है, ए और ए तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, ए और ए तो कैंसिल हो जाएंगे। तो तुमने देखा जो अब रो नॉट है वो ए के ऊपर मैटर नहीं करता, ए के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एम पी डिवाइडेड बाय 4/3 πr नॉट क्यूब। इसकी वैल्यू आती है
10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये नंबर भी याद रखने वाला नंबर है कि सेंट्रल डेंसिटी क्या है, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये ऑलमोस्ट सब न्यूक्लियस की वजह से कांस्टेंट रहती है। सबको समझ आया भाई इतना कॉन्सेप्ट यहां तक? रेडियस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आई? हाँ ना बताओ भाई, नहीं तो दोबारा बताऊंगा। समझ आया? यस सर। सबको पता चला? फॉर्मूला वगैरह सब क्लियर है हुआ? यस सर। ओके, ये सीयूईटी के क्वेश्चन में आएगा, पक्का आएगा, मैं प्रॉमिस बोल सकता हूँ कि ये टॉपिक पक्का आएगा। ठीक है, ओके। तो अगर सबको, ये हाँ एक्सक्यूज मी हाँ, सर, ये ए जो है शाह बाउंड्री आपने बोला, तो ये भी किसी पे डिपेंड करता है? ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। ए विल डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। ओके सर। किसी का और कोई क्वेश्चन? क्लियर? बताओ भाई, क्लियर? यस सर। ओके, लेट्स बिगिन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये आ गया तुम्हारा रेडियस क्या होता है, तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? देखो, बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की वही होती है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि एटम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम? कैसे डिफाइन करते हैं? किसी को पता है? हाँ बताओ, कोई भी आइडिया, कोई गेस मारो। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन एटम इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन एटम। तो अगर मान लो कि एटम का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है उसको तुम्हें एकदम बाहर निकालना है, तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो है बाइंडिंग एनर्जी। वैसे ही न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी होती है, इट इज एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस एंड टेक ऑल द न्यूट्रॉन प्रोटॉन फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मान लो तुम्हें न्यूक्लियस को ब्रेक करना है और उसके अंदर जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन थे उनको एकदम दूर दूर ले जाना है, ताकि उनके ऊपर आपस में कोई भी फोर्स ना रहे। तो उतनी जितनी तुम्हें ये काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। या फिर तुम इसको उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी स्पेंट व्हाइल मेकिंग द न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस बनाते टाइम जितनी भी एनर्जी लगी, जो भी एनर्जी यूज हुई, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब ये एनर्जी यूज कैसे हुई होगी? अब सोच कर देखो, हम कोई इंसान तो है नहीं जो न्यूक्लियस बना रहा है, न्यूक्लियस तो खुद से बन जाता है। तो कैसे बन जाता है खुद से न्यूक्लियस? जो न्यूक्लियस बनाने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है? तो क्या होता है, आइंस्टाइन ने बोला मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये आइंस्टाइन ने बोला। आई होप कि सबको ये पता होगा कि मास इज कन्वर्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस इज व्हाट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब न्यूक्लियस बनता है तो न्यूट्रॉन्स का कुछ मास होता है और प्रोटॉन्स का कुछ मास होता है। जब वो मिल जाते हैं और न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो जो टोटल मास होना चाहिए था उसका थोड़ा सा कम होता है। अच्छे से समझते हैं कि मान लो कि दो न्यूट्रॉन्स हैं और दो प्रोटॉन्स हैं, उन्होंने मिलकर बनाया हीलियम। ठीक है, उन्होंने मिलकर बनाया हीलियम। अब दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स का मास मिला दें तो मान लो हो जाता है कैपिटल एम। अगर हम पहले उनका मास कैलकुलेट करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स का, तो मान लो उन चारों का मास टोटल मिलकर होता है कैपिटल एम। ठीक है, और अगर हीलियम बन जाने के बाद हम हीलियम का मास मेजर करें तो वो होगा M2, वो होगा M2। तो M2 जो है वो M से छोटा होगा, यानी कि जो मास ऑफ हीलियम है वो एक्चुअल में कम है उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मास के।
ठीक है, इतना बात को समझे कि जो पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास था बनने से पहले, बनने के बाद थोड़ा सा मास जो है वो कम हो गया, न्यूक्लियस में उतना मास नहीं आया जितना कि पहले उन कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली मास था। ठीक है, जैसे तुमने एक सब्जी बनाई, चार चीजों से मिलकर, चारों का मास था 1 kg, तो तुमने 4 kg सब्जी ली और सब्जी को बना दिया, लेकिन जब सब्जी बनी तो उसका मास था 3 kg, यानी कि इस प्रोसेस में 1 kg मास उड़ गया। तो न्यूक्लियस का मास है 3 kg, लेकिन उसके कंपोनेंट्स का पहले मास था 4 kg। अब ये जो 1 kg मास उड़ा है ना, यहां से आई है एनर्जी, ये एनर्जी यूज हुई है, ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और वो एनर्जी यूज हुई है न्यूक्लियस बनाने के लिए। तो न्यूक्लियस बनाने के लिए एनर्जी कहां से आती है? मास से आती है। किसके मास से आती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से आती है। तो ये कंसेप्ट समझे भाई सारे? बताओ, कंसेप्ट समझे सारे? समझे कंसेप्ट? यस सर। ओके, अगर तुम ये कंसेप्ट समझ गए तो हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है कि जो पहले मास था, टोटल मास था, कितना मास था? मान लो तुम एक न्यूक्लियस बना रहे हो जिसके अंदर टोटल z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो पहले कितना मास था बनाने से पहले? z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस n टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, माइनस अब कितना मास है? इसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर तुम पहले वाले मास से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दो तो तुम्हें मास डिफरेंस मिल जाएगा कि कितना मास डिफरेंस आया। और अगर मैं मास डिफरेंस को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है ना, एम सी स्क्वायर। तो अगर मैं मास डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर कर दूं तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। इसमें अब समझने वाली बात यही है कि ये कैसे मास ऑफ न्यूक्लियस है। ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी है, ये मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे है? ये मास ऑफ न्यूक्लियस ऐसे है, तुम ध्यान से देखो, ये है मास ऑफ एटम, और मास ऑफ एटम से अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मास ऑफ न्यूक्लियस। समझे बात? समझे? यस सर। तो क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है, क्या फिजिक्स है इसकी? हाँ जी, बताओ जल्दी। क्लियर है सर। इस मास ऑफ प्रोटॉन, इस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूलाज को तुम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब यहां पे तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर तुम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? 1 AMU मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर करके। ठीक है, अगर तुम इसको कन्वर्ट करो तो तुम्हारे पास आएगा 930.1 930.5 सॉरी 930.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयर विल बी नो सी स्क्वायर, ओके, इट विल बी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? हमने अभी पढ़ा ना कि बाइंडिंग एनर्जी मास डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो ये मास डिफरेंस ही मास डिफेक्ट होता है। तो जो पहले तुमने जितने मास का सामान लिया था, न्यूक्लियस बनाने के बाद मास थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जितना भी मास कम होता है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय जस्ट सी स्क्वायर, दैट्स इट। ऐसे तुम कैलकुलेट करते हो बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, फिर तुम्हें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या है, क्योंकि इतना लंबा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा सीयूईटी में। सीयूईटी में आएगा डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या डायरेक्ट डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक क्वांटिटी होती है पैकिंग फ्रैक्शन, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन होती है अगर तुम मास डिफेक्ट लो और मान लो कि हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए, हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए मास डिफेक्ट था डेल्टा एम। ठीक है, और नियॉन का न्यूक्लियस बनाने के लिए मास डिफेक्ट था डेल्टा M2। ठीक है, अगर तुम इन मास डिफेक्ट्स को टोटल मास से डिवाइड कर दो, टोटल मास से डिवाइड 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 कर दो, इसमें हीलियम में टोटल है 4,
इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूऑन में है 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, ये आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारे जो न्यूट्रॉन्स फाइनली या तुम्हारे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में है वो कितने अच्छे से पैक हैं न्यूक्लियस के अंदर। जितना छोटी वैल्यू होगी एफ की उतने ही बुरा पैक्ड है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही अच्छे से पैक्ड है, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि कितने बढ़िया से पैक्ड हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। सब समझ गए इस फॉर्मूला तक? पैकिंग फ्रैक्शन तक सबको क्लियर है? जल्दी बोल दो Yes. भाई हाँ ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक और फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए, या एक और डेफिनेशन है, उसको बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। अब मैं पूरे के पूरे न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं करना चाहता। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? पूरे न्यूक्लियस को तोड़ के अलग अलग रख दो सबको। मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन को हटाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? वो होता है सेपरेशन एनर्जी। या मान लो मैं एक न्यूट्रॉन को हटाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या एनर्जी होगी? तो तुम्हें इससे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हीलियम न्यूक्लियस, या व्हाट इज द सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम अ हीलियम न्यूक्लियस। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो कि मैं प्रोटॉन हटाना चाहता हूं, तो मेरे पास पहले न्यूक्लियस था AXZ। Z means number of protons, A means number of protons plus neutrons, ठीक है। A क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर तुमने प्रोटॉन हटा दिया तो तुम्हारा बताओ Z कितना हो जाएगा? नए न्यूक्लियस का Z कितना होगा? तुमने एक प्रोटॉन कम कर दिया तो क्या हो Z गया? minus और तुमने मास नंबर में भी एक कम कर दिया, तो तुम्हारा नया न्यूक्लियस क्या होगा? A-1 X Z-1। अब मान लो कि इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी थी और इसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी थी। अगर तुम इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी सेपरेशन एनर्जी तुम्हें चाहिए, या कितनी एनर्जी चाहिए तुम्हें एक प्रोटॉन हटाने के लिए। अगर तुम्हें इसकी बाइंडिंग, इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पता है और इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पता है, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा, अगर तुम इन दोनों को माइनस करोगे, ये पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए प्रोटॉन हटाने के लिए। सिमिलरली अगर तुम्हें न्यूट्रॉन हटाना है तो क्या करोगे? मान लो मैंने न्यूट्रॉन हटाया, तो अब नया न्यूक्लियस क्या होगा बताओ? Z क्या होगा नए न्यूक्लियस का? बताओ Z बताओ। minus Z क्या होगा? मैंने न्यूट्रॉन हटाया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, तो Z ही रहेगा। लेकिन A-1Z। ठीक है, लेकिन मास एक कम हो जाएगा। तो अब तुम्हें अगर पता करना है कि कितनी एनर्जी चाहिए न्यूट्रॉन हटाने के लिए, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसकी बाइंडिंग एनर्जी। अगर तुम इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए एक न्यूट्रॉन को हटाने के लिए, ठीक है। सेपरेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जीज के जैसे ही होती है। जैसे एटम्स में क्या होता है? तुम्हारे पास एक एटम है, उसका एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही न्यूक्लियस में सेपरेशन एनर्जी चाहिए प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को हटाने के लिए, ठीक है। तो जो एटॉमिक फिजिक्स में आयनाइजेशन एनर्जी काम करती है, वही न्यूक्लियर फिजिक्स में सेपरेशन एनर्जी काम करती है। तो बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी, यहां तक सबको पता चला क्या है? सब एकदम क्लियर? यस सर। ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है? हम देखेंगे कि मान लो कि ए है 1, A1 किसके लिए होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है? फिर हम देखेंगे A2 के लिए बाइंडिंग, या A4 के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है, A5 A6 के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है। हम ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस ए ग्राफ देखेंगे कि मतलब अलग अलग न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है। तो वो कुछ इस तरह का कर्व आता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह का कर्व आता है, और इस कर्व्स के काफी फीचर हैं। इस कर्व में काफी फीचर हैं, ये हमें बताता है, सारी चीजें बता सकता है। ये हमें फिजन फ्यूजन भी बताता है कि क्यों फिजन होता है, क्यों फ्यूजन होता है,
ठीक है, ये न्यूक्लियस ऐसे हैं तो क्यों हैं। ये कर्व न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत ही फेमस कर्व है और इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम इस कर्व को पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर इस कर्व के अंदर जो सारे के सारे फीचर्स हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम बाकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबको समझ आया आज का लेक्चर? मैंने एज सिंपल एज दैट रखा है ताकि जो फैक्ट बेस है उसको ले। अगर तुम इसको पढ़ना चाहते हो बुक से, मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम बुक से जरूर पढ़ो। तो तुम्हें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? मित्तल एंड वर्मा। न्यूक्लियर फिजिक्स की एक बुक आती है मित्तल एंड वर्मा, तुम्हें टेलीग्राम चैनल में बुक मिल जाएगी। इस बुक को अच्छे से पढ़ो। इस बुक में जो भी लाइंस लिखे हुए हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी ग्राफ्स हैं, वो सीयूईटी में डायरेक्टली आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा, इसी बुक के चैप्टर में से आएगा। ठीक है जी, सबको क्लियर है? एवरीवन हो जाएगा? ठीक है, यस सर। तो हम मिलते हैं कल। हम कल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है?